students, welcome to Suraj Group of School. Myself जसवंत सिंह, PGT मैथमेटिक्स। आज हम बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उन पर बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल फर्स्ट प्रॉपर्टी, a to b fx dx. Students, if we change the variable, then there will not be any change in the value of the integral. अगर वेरिएबल चेंज करते हैं तो इंटीग्रल की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2, स्टूडेंट्स, if we interchange the limits, means lower limit to upper limit and upper limit to lower limit, then there will be involvement of negative sign. There will be involvement of negative sign. Okay, students, one very important property which is very applicable when the function is splitting into several parts. Let us suppose a modulus function. मॉडुलस फंक्शन, मान लीजिए हमारे पास मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 इसका इंटीग्रल है। इसका इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 2 तक है। अब माइनस एक्स की वैल्यू -1 से 2 तक है, यानी कि या -2 से कर लेते हैं, -2 से 2 तक है। तो स्टूडेंट्स, एज वी नो the modulus property, x plus 1, modulus x plus 1 will be negative if x is less than -1, and this will be equal to positive x plus 1 if x is greater than -1 आर इक्वल टू -1। तो इसमें इस प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं वो प्रॉपर्टी इसमें हेल्पफुल होगी। मीन्स यहाँ पे a की जो वैल्यू है, a और b के बीच में c पॉइंट लाई करता है, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान रखना, a to c fx dx plus c to b fx dx. Students, if you want to prove these property, you can do very easily by taking LHS and simplifying RHS also. Then you will get LHS equal to RHS. Now, fourth property is the most important property I am going to tell you. More than 90% of the cases, this property will be applicable in definite integral. अब प्रॉपर्टी आपकी है 0 to a fx dx। अब इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर लेंगे। 0 to a f a minus x dx. Now, if you
use the substitution a minus x equal to t. Differentiating both sides, minus dx equal to dt and dx equal to हो जाएगा minus dt. Okay, lower limit. What will be lower limit? If you are putting x equal to 0, means this will become minus. x equal to 0 पुट करते हो तो a आएगा, और x equal to a पुट करते हो तो t की वैल्यू क्या आएगी? 0. ओके, और यहाँ पे क्या आएगा? f t और dt. ओके, अभी जो मैंने सेकेंड प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी ये थी a to b fx dx equal to minus to interchange the limits, upper limit to lower limit. ये आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ही बताया था. तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0 to a ft dt. अगर आपने according to first property, if we change the variable, then there is no change in the value of the integral. Then it will become fx dx. This is equal to left hand side. इस तरह से बच्चों मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको प्रूव करके दिखाया है. ये कई बार सीबीएसई बोर्ड में एग्जामिनेशन में पूछी जाती रही है. अब हम सॉल्व करेंगे. अब प्रॉपर्टी 4 की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. 4 पार्ट कर सकते हो, 1 कर सकते हो. ये प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली उसी प्रॉपर्टी का अनदर फॉर्म है. a to b f a plus b minus x. इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको प्रूव किया था, उस तरह से इस प्रॉपर्टी को भी आप प्रूव कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूटिंग a plus b minus x equal to t. Then after integration, after putting the values, you will get the left hand side result. Okay. A fifth property is very easy property. If a function is written as the sum of two functions, means f1x plus f2x dx, then this can be written as a to b f1x dx plus a to b f2x dx. This property is said to be linear property. इसमें जो सम फॉर्म में एक फंक्शन गिवन है, उसको स्प्लिट करके टू फंक्शन में हमें, टू इंटीग्रल में हमें लिखना है. इस प्रॉपर्टी को फिफ्थ प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं. बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी नंबर 6 करेंगे अभी हम. प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या प्रॉपर्टी है? स्टेटमेंट. प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट बहुत जरूरी है. जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, then you should write the statement of the property. Rather to write the numbers, you should write the statement of the property. By whenever you are required to apply, then you have to write the statement of the property. Okay. इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 if f of minus x equal to negative fx. Means fx is odd function. Okay. अब इसमें ध्यान रखना, अगर इवन फंक्शन होगा, यानी f of minus x is equal to positive fx आ जाए, then function is said to be even function. then इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 times 0 to
a fx dx। ये तो this property is also very important. Now I will tell you another property number 7, 0 to 2a fx dx, 0 to a fx dx plus a to 2a f 2a minus x dx। ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसका यूज कर सकते हो, सो मेनी क्वेश्चंस में इसका यूज आएगा। ओके, लेटर ऑन whenever we will solve the questions of exercise, then these properties will be applicable। इसको प्रूव करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको 2a माइनस एक्स की जगह आप क्या मान लोगे, t मान लोगे, वहां से ये प्रॉपर्टी इजीली आपकी प्रूव हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी नंबर 8, fx dx। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसमें अपर लिमिट से 2 कॉमन ले सकते हो, 0 to a fx dx, लेकिन कंडीशन है इफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx आ जाए तभी कर सकते हैं। 0 आएगा if 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx आ जाए तो उस केस में ये रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। 7 प्रॉपर्टी जो अभी बताई थी उसको अप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट काफी इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, अभी बच्चों आपने ये प्रॉपर्टीज, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आपने स्टडी की। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, पाई बाय 6 to पाई बाय 6 to पाई बाय 3, 1/1 plus रूट tan x। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड लिमिट प्रोवाइडेड, लोअर लिमिट पाई बाय 6 एंड अपर लिमिट पाई बाय 3। क्वेश्चन है 1/1 प्लस रूट ओवर tan x। अब रूट ओवर tan x को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। आपको पता है जो tan x होता है उसको हम लिख सकते हैं sin अपॉन cos x। अगर इसको हम tan को sin अपॉन cos लिख सकते हैं तो बाय सिंप्लीफाइंग रिजल्ट क्या आ जाएगा, रूट cos x, यहां पे क्या आएगा cos x प्लस रूट sin x dx। अब इसमें यूज करें प्रॉपर्टी यूजिंग a to b fx dx, a to b f a plus b minus x dx। अगर इसको अप्लाई करते हैं तो x रिप्लेस हो जाएगा आपका पाई बाय 2 माइनस एक्स में। कैसे, आपको पता है a की जगह पाई बाय 6 है मीन्स 30 डिग्री, और b की जगह पाई बाय 3 है मीन्स 60 डिग्री। 60 प्लस 30 कितना हो, 90, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा
पाई/6 पाई/3 रूट साइन एक्स, क्योंकि x की जगह पाई/2 माइनस एक्स रखोगे तो डेफिनेटली cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। और डिनोमिनेटर में रूट cos x रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स रूट cos x, मीन्स इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। Now adding equation 1 and 2, add equation 1 and 2, तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, नीचे भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, कट जाएगा 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई/3 माइनस पाई/6, इसको सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू जो आएगी पाई/12 आएगी। तो इस तरह से आपने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन भी हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा -2 से 2, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x² अपॉन 1 प्लस 2 की पावर dx। अब एक बात का ये ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी वो प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है। fa प्लस बी माइनस एक्स dx, तो x की जगह क्या पुट करना है, -2 प्लस 2 0 हो गया, x की जगह माइनस एक्स पुट करना है, माइनस एक्स का स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस 2 की पावर माइनस एक्स dx। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि बच्चों 2 की पावर माइनस एक्स को हम ले सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर x, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर x ऊपर चला जाएगा x², अब नीचे 2 की पावर x प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। एडिंग 1 एंड 2, add 1 and 2, adding equation 1 and 2, you will get 2i equals 2 raised to the power x plus 1, इसका कॉमन ओवर हियर, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम है, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, x² कॉमन हो जाएगा और 2 की पावर x प्लस 1 dx, ये कैंसिल आउट, लिमिट आपके पास -2 से 2 है। आगे आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि x² का इंटीग्रेशन सारे बच्चे जानते हैं। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3 होता है, 3 को आपने यहाँ पे कर लिया, x³ -2 to 2। अब इसमें लिमिट आप अगर अप्लाई करते हो आप तो 2³ कितना होता है, 8 माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज तो 2i इक्वल टू कितना हो गया, 8 8 16/2 कितना हुआ 8, तो i की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज यहाँ पे 3 है, ध्यान रखना, 16/3 है, i की वैल्यू कितना आ जाएगा 8/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये 4 मार्क्स का सीबीएसई में पूछा गया है, आज से करीब 4 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ था और उस समय के बच्चों के लिए काफी ये चैलेंजिंग क्वेश्चन माना जाता है। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं, 0 to 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx। अब बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा
दो इंटीजर्स के बीच में ही डिफाइन होता है। जैसे 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आएगी, और 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आएगी, और 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी, और 3 से 3.5 के बीच में डेफिनेटली इट विल बिकम 3। अच्छा, 0 को इसकी वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पे x तो 2 माइनस 1, यहाँ 2 कॉमन, 3 माइनस 2, यहाँ 3 आउटसाइड, 3.5 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 2, यहाँ पे आया 1.5। रिजल्ट कितना हो गया? 4.5। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह से हमने कई क्वेश्चंस को सॉल्व किया, कई डिफरेंट क्वेश्चन को, और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल मैंने आपको बताया। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।